Hello everyone, this is Varsha Roga in front of you, and today we are going to cover part 3 of chapter 1, Glorious Past of India. In the first and second lecture, we studied how the purpose of historian is to recreate history on the basis of sources, proofs and evidences. Studied that the sources of India are divided into two main parts, literary sources and archaeological sources. In literary sources, we studied Brahmana literature, Buddhist literature and Jaina literature. In other than religious literature, we studied how historical poems, stories, plays, commentaries also help us recreate history on papers. Third is foreign accounts, in which we will study how foreign travelers came to visit India, travel India, and how foreign students came to study in India, and they got so much impressed by Indian administration and life that they wrote many accounts on it about the administration, about religious, social, political, economic life, and so many aspects. And they gave us, the Indians, one more reason to be proud of India. So we will begin from that. But before I begin, you have to subscribe my channel. Jaldi jaldi jao, channel subscribe karo, give a thumbs up if you like my lectures, and also your appreciations are always welcome. If you get any queries or you have anything to suggest, please do comment, or you can mail me on varsharoga1300@gmail.com. So let's begin. From the ancient times, cultural and economic achievements of India have attracted the world. एंशियंट टाइम से हमारे अचीवमेंट्स, हमारे इकोनॉमिक और कल्चरल अचीवमेंट से बहुत लोग अट्रैक्ट हुए हैं इंडिया की तरफ. इंडिया वॉज द होम ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी हैड द फाउंडेशन इन इंडिया इन as early as 5th century, and it got revived in 2010. We also had other universities which were famous like Taxila. India had commercial relationship with many countries of the world. ठीक है, हमारे commercial relations थे बहुत सारी countries के साथ. Many people from the world used to come here to study and to acquire knowledge of religion and philosophy. We were the major center of philosophical studies, religious studies. सबसे बड़े religion हमारे यहाँ स्टार्ट हुए थे. हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनका ओरिजिन इंडिया से स्टार्ट हुआ था. Therefore, foreign writers were deeply impressed with India, provided enough foreign account related to भारत. उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा इंडिया से इम्प्रेस होके, बट दीज अकाउंट्स आर नीडेड टू बी कॉशियसली स्टडीड. इनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज ग्रीक लिटरेचर. अमंग ग्रीक लिटरेचर्स Theseus, Herodotus, Nearchus, Aristobulus, Onet Surytus, Strabo, Arrian, Scylla are prominent. I know it is very hectic and very difficult to remember all these names. So what we will do, we will remember only the important ones. हम क्या करते हैं, हेरोडोटस याद रखते हैं, स्ट्रैबो, एरियन और स्काइलीस, ये चार नाम तो हम याद रखते हैं. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि एक वर्क लिखा गया ग्रीक में, इंडिका, जो मेगास्थनीस ने लिखा था. मेगास्थनीस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर. पहले ऐसा होता था कि ट्रीटी साइन हो जाती थी फॉरेन रूलर्स और इंडियन रूलर्स के बीच में, तो हमारे एम्बेसडर्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे और उनके एम्बेसडर्स हमारे यहाँ आते थे, काइंड ऑफ एक सुपरविजन रखने के लिए भी कि इनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. और साथ में हेल्प करने के लिए भी, एक ट्रू फ्रेंडशिप निभाने के लिए भी ऐसा होता था. तो मेगास्थनीस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एंड ही वॉज एम्प्लॉयड इन द चंद्रगुप्त मौर्यस एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, जिसमें उन्होंने सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ लिखी चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन की. राइट. अमंग अदर ग्रीक लिटरेचर, ज्योग्राफी ऑफ Ptolemy, Pliny the Elder's Naturalis Historia, Aristobulus History of War and Strabo's Geography are notable. कैसे याद रखा जाएगा? सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ Ptolemy एंड स्ट्रैबोस ज्योग्राफी. ठीक है, ये दोनों ज्योग्राफी के ऑथर्स थे, ये दोनों याद रखना, स्ट्रैबो एंड टॉलमी. हिस्ट्री ऑफ वॉर, एरिस्टोबुलस हिस्ट्री ऑफ वॉर, ये थोड़ा बहुत रफली एक बार at a glance you have to see. Periplus of Erythraean Sea, which is also an account on geography, it provides us description of ports and trades, कि कैसे ports हुआ करते थे, कैसे trade हुआ करते थे उस टाइम पे इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, जो ports यूज़ किए जाते थे और जो trade
लाइन्स, सी रूट्स यूज़ किए जाते थे, उनका डिस्क्रिप्शन इंडियन और रोमन एम्पायर में क्या था, ये सब कुछ इस वाली बुक में लिखा गया है, पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी। नाउ द चाइनीज अकाउंट्स। अमंग चाइनीज ट्रेवलर्स मेमोइर्स ऑफ फाहीन, सुंगयुंग, युआन सांग एंड आई सिंग are valuable. Sorry if I pronounce it wrong. I don't know much Chinese. ठीक है, आप लोगों को आती है तो do correct me in the comment section. So Fahin in the time of foreign Chandragupta II came to India. ठीक है, तो फाहीन चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे इंडिया में आए। अब फाहीन के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वॉज अ मंक, चाइनीज बुद्धिस्ट मंक. He didn't record specifically anything about the political administration of Chandragupta II, और यहाँ तक कि वो उन्होंने नाम तक नहीं मेंशन करा जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में वो 5 साल रहे। गुप्ता टू के बारे में उन्होंने एक बार भी उनका नाम नहीं लिखा अपने अकाउंट्स में। वो रिलीजियस पर्सन थे इसलिए उनका मेन फोकस रिलीजन पे था, पर उन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी थी, जैसे देयर वर सो मैनी इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द पॉलिटिकल और सोशल लाइफ ऑफ द पीपल वॉज, कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, जो ऑफेंस होता था, जो क्राइम होता था उसी के बेसिस पे लोगों को पनिशमेंट दिया जाता था, और जो रिपीटर्स थे, ऑफेंडर्स थे, जो रिपीट ऑफेंस करते थे उनको बहुत ही सीवियरली पनिशमेंट मिला जाता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम फिक्स था, ठीक है, बहुत ही पीसफुल लाइफ थी, लोग सेटिस्फाइड रहते थे अपने राजा से, और भी बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने कहा था कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म मेन रिलीजन्स हैं इंडिया के, और हिंदुइज़्म मेनली मिडिल एरिया में ज़्यादा, मिडिल जो इंडिया है उधर ज़्यादा पॉपुलर है, जो आज भी है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया जो मिडिल एरिया है उधर पॉपुलर है। सेकेंड, ये याद रखना है कि वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। Second is Yu Sang. He was called the Prince of Travelers because he used to travel so much. उन्होंने बहुत सारे एरियाज कवर करे थे। He was a Chinese Buddhist monk, by the way. So his main purpose was to collect information on Buddhism or collect their textbooks, right? He was educated in the Nalanda University for 5 whole years. वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, I told you that it was one of the oldest universities of the world, founded in 5th century. ठीक है, he came to India in the ruling period of Harshvardhan, and he described the history of India in his book CUK. CUK का मतलब होता है Record of the Western Countries. इस बुक में उन्होंने इंडिया का डिस्क्रिप्शन लिखा, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल लाइफ पे इंडिया की। पर इसको कहा जाता है कि एंटायरली डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वो मेनली हर्षवर्धन के रूल को और बुद्धिज़्म को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, और कहीं जगह कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। सो it is not considered entirely dependable, but yes, it is one of the most important sources of history of India. In the later 17th century, Singh travelled in India, and his accounts provide information related to Nalanda and Vikramshila universities along with Indian culture and society. उन्होंने mainly नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और कैसा इंडिया कल्चर है और इंडिया की सोसाइटी है जी याद होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया, राइट। उसके बाद ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आए याद होना चाहिए। नाउ तिब्बतन अकाउंट्स ऑथर्ड बाय तारानाथ, कांगूर एंड तांगूर वर्क्स आर कंसिडर्ड यूजफुल अमंग तिब्बतन अकाउंट्स। एम आई क्लियर? कांगूर और तांगूर वर्ड्स लिखे गए तारानाथ के द्वारा। अरेबियन ट्रैवलर्स एंड जोग्राफर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू भारत, ठीक है। अरेबियन ट्रैवलर्स और जोग्राफर्स ने भी बहुत इन्फॉर्मेशन दी भारत के बारे में। अल मसूदी एक अरब ट्रैवलर, जोग्राफर और हिस्टोरियन थे, जिन्होंने बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया इंडिया का इन हिज बुक मिदास ऑफ गोल्ड, ठीक है। एंड ही रोट दैट भारत रूल्ड ऑन लैंड एंड सी। इनको इतना ज़्यादा अच्छा हिस्टोरियन माना जाता था कि इनको हेरोडोटस ऑफ द अरब्स बोला जाता था। हेरोडोटस बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, ग्रीक हिस्टोरियन। तो ये अल मसूदी उनके ही कंटेम्प्रेरी माने जाते थे कि ये अरब हिस्टोरियन है कंपेयर टू हेरोडोटस, तो हेरोडोटस ऑफ द अरब बोला जाता था। किसी ने तो इनको ग्रीक लिटरेचर में इनको ये भी बोला गया कि ही इज़ द फादर ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। सो
ही रोट दैट भारत रूल्ड ऑन लैंड एंड सी, हमारा भारत वर्ल्ड गुरु था, लैंड और सी दोनों पे राज करता था. Now there are references of Pala Pratihara rulers in the work Chanchanama and Sulaiman's Navi books. Silasat ul Tawarik जो भी है, this is not very important, no need to remember that, but just have a rough idea कि ये कश्मीर के रूलर्स थे और इनके बारे में चंचनामा और सुलाइमान की नवी बुक्स में लिखा गया था. Among Arab writers, अल-बिरूनी तारिक हिंद इज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अल-बिरूनी के बारे में आप जान सकते हैं थोड़ा थोड़ा, राइट? थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिए, नेट से गूगल करे, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है. अल-बिरूनी वॉज द मोस्ट फेमस अरब राइटर एंड दिस इज योर होमवर्क टू स्टडी अबाउट हिम. ही लर्नड संस्कृत लैंग्वेज एंड स्टडीड ओरिजिनल सोर्सेज. ऑन दैट बेसिस ही रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, इंडियन कल्चर के बारे में लिखा अपनी बुक तारिक हिंद में. और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रही हूँ बिकॉज इट इज़ योर होमवर्क. ठीक है, यू विल गेट सो मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिम. हमने फर्स्ट डिवीजन पढ़ा था कि रिलीजियस लिटरेचर देन सेक्युलर लिटरेचर. सेक्युलर लिटरेचर में हमने अदर देन रिलीजियस लिटरेचर पढ़े, ठीक है, और हमने फॉरेन अकाउंट्स भी पढ़े. थर्ड था हमारा वंशावलीज. वंशावली राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज तक. इंडियन हिस्ट्री में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था ही इसका, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में. व्हाट इज़ इट? वंशावलीज होते क्या हैं? ये एक ट्रेडिशन है जिसमें हम किसी भी पर्सन की हिस्ट्री सिक्योर करते हैं उसकी फैमिली लीनिएज को लिखकर. ठीक है, उसमें पूरा उसका जीनियोलॉजी, लाइक एक फैमिली ट्री बनाते हैं हम. वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ वंशावलीज, फैमिली ट्री बनाना कि पहले गार्जियंस कौन थे, फिर उनके सन एंड डॉटर, फिर उनके सन एंड डॉटर, पूरा जनरेशन हम ट्री बनाते हैं, तो वो भी वंशावलीज का पार्ट है. इससे हम हिस्ट्री जानते हैं एक पर्सन की कि उसका कैसे ओरिजिन हुआ, कौन कौन उसकी फैमिली में थे, वो लोग क्या बिजनेस करते थे, एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ एवरी पर्सन. ठीक है, सो द मेन पर्सन जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका अगर हम पूरा बैकग्राउंड जानते हैं तो ऑलमोस्ट हम एक सही कंक्लूजन और हिस्ट्री पे पहुंचते हैं. तो ये इसका पर्पस था. It is a tradition in which Vanshavalis composer go to houses of each caste and class and in the presence of prominent people write down the lineage of that person in manuscriptal codex. ठीक है, कि क्या करते थे, हिस्टोरियन जाते थे अलग अलग घरों में, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्लास के, और जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसके जो भी सराउंडिंग में या उसकी लीनिएज में जो भी उसके डिसेंडेंट्स होते थे, मतलब फैमिली के अंदर जो भी आगे की जनरेशन्स होती थी, उन सब के आगे उनका फैमिली ट्री बनाया जाता था, उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाती थी. और ये कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है किसी की पर्सन के लिए. ठीक है, ऑल्दो इट स्टार्ट्स विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉस्मोलॉजिकल क्रिएशन टू द हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इवेंट्स ऑफ द टाइम ऑफ दिस एंसेस्टर्स. कि जब उनके पूर्वज पैदा हुए थे तो उस टाइम कैसे हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंडीशंस थी. थोड़ा कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स भी लिखे जाते हैं कि उस टाइम ऐसा मौसम हुआ करता था, यूनिवर्स ऐसा वर्क करता था. ठीक है, उसके बाद उधर के जो पूरा एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाता है और फिर उस पर्सन के बारे में लिखा जाता है. थ्रू द स्टडी ऑफ जीनियोलॉजी ओनली वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हु आर एंसेस्टर्स वर. ठीक है, prominent Vanshali writers were Badua, Juga, Raoji, Bhatt, Tirath Purohit, Pandey, Bharut, etc. From the historical point of view, genealogies are important sources of study. What is genealogy, by the way? हमने 2 बार ये वर्ड पढ़ लिया, एक बार मैंने भी अलग से बोल दिया था. genealogy is the study of genes, ठीक है, of the family lineage. जैसे हम पढ़ते हैं ना गांधी फैमिली के लिए, क्योंकि गांधी फैमिली इज़ ह्यूज, कब से आ रही है, तो हम पढ़ते हैं कि पहले कौन से लीडर्स आए थे, फिर उनके अच्छा ये बेबीज़ हुए, फिर उनके ये बेबीज़ हुए, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, फिर उसके बाद आए ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा. तो हम ये सारा इनका भी फैमिली ट्री पढ़ते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं हिस्ट्री में. First is Vanshavalis on ledger accounts composed by Purohits are recognized as authenticated और authentic judicial information. जो लेजर अकाउंट्स में जो कॉमर्स वर्क्स होते हैं उनमें अगर वंशावलीज क्रिएट की जाती है तो वो ऑथेंटिक जुडिशियल इंफॉर्मेशन की तरह काम करती है. पहले ये पुरोहित्स बनाया करते थे जो अकाउंटेंट्स होते थे. ठीक है,
Documents related to subjects of family relations are written on paper. The object is to keep the everlasting record of the family. क्या ऑब्जेक्ट है कि उस फैमिली का everlasting record रहे, है ना, from every aspect. Signs along with letters are used in the description. जो जो फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट हैं उनके साइंस और उनके डिस्क्रिप्शन लिए जाते थे. रिटन एविडेंसेस आर मोर इफेक्टिव देन ओरल एविडेंसेस. और ये एक रिटन एविडेंस की तरह वर्क करता था. सर्टेनली, क्योंकि रिटन एविडेंसेस की ज़्यादा मान्यता होती है, इसलिए वेंशवलीस एक बहुत ही ऑथेंटिक जुडिशियल अकाउंट माना जाता है. एज पर भारतीय एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, genealogies and ledgers have been accepted as coherent judicial fact. एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीके से घुमा के बोल रहे हैं. ठीक है. जगदीश प्रसाद वर्सेस सरवन कुमार AIR 2003 court accepted that the entries in ledgers of Pandas as evidence. There are many cases in which Vanshavalis and ledgers are accepted as evidences. इस केस में भी कोर्ट ने इनके लेजर एंट्रीज को एक्सेप्ट किया था एज जुडिशियल अकाउंट्स. ठीक है. और ऐसे ही बहुत सारे केसेस में भी हुआ है. सेकेंड इज वेंचुअली राइटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फोक हिस्टोरियंस. फोक हिस्टोरियंस क्योंकि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में भी वेंचुअलीज यूज़ होती थी, हमारे पुरानास में भी यूज़ होती थी, और वेंचुअलीज बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है पुरानास का. ठीक है. तो ऑब्वियसली इन हिस्टोरियंस को फोक हिस्टोरियंस भी बोला गया इसलिए. तो हिस्ट्री ऑफ ईच कास्ट एंड पर्सन इज रिटन इन वेंचुअलीज. वी गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर लीनिएज फ्रॉम देम. Eventually, writers also provided information regarding casteist social history. पता है, अगर हम किसी भी फैमिली के लीनियज लिखें, ठीक है, पूरा फैमिली ट्री बनाएं और उन अलग अलग मेंबर की अलग अलग स्टोरीज देखें और उनके कास्ट सिस्टम के बारे में स्टडी करें, तो हमें ओरिजिन ऑफ कास्ट समझ में आता है कि कैसे कास्ट डिवाइड हुई. सबसे पहले वो पर्सन क्या थे, है ना, फिर कैसे कैसे उनके कास्ट सिस्टम ग्रो होता गया या ऑर्थोडॉक्स होता गया, या पहले ऑर्थोडॉक्स था अब लीनियंट होता गया. इंटरकास्ट मैरिजेस हुई तो कल्चर मिक्स हुआ या नहीं, या कास्ट ही हुआ, विद इन कास्ट ही हुआ, उसकी वजह से कल्चर आज भी ऑर्थोडॉक्स है. सो वेंचुअलीज आर इम्पॉर्टेंट इन सो मैनी वेज. वी कैन डिराइव सो मैनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स फ्रॉम वेंचुअलीज. Information related to those great people who were considered as the role model in the society are derived from Vanchavalis. जैसे मैंने आपको गांधी फैमिली का बताया कि आज उनकी भी हम Vanchavalis बनाते हैं. The tradition of writing Vanchavalis, which was started by Vedic sages to keep society well arranged and organized, is still continuously present from 1000 years to this day. Vanchavalis यूज़ की जाती थी एंशियंट सोसाइटी में हमारी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड और वेल अरेंज रखने के लिए कि कौन कहाँ से आया है, किसका क्या सिस्टम रहा है, किसकी क्या कास्ट रही है, ऑल द इंफॉर्मेशन जो आज तक यूज़ होती है यही वर्क के लिए. इंट्रोडक्शन टू मैनी हिस्टोरिकल पर्सन्स इज प्रोवाइडेड इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ वेंचुअलीज ट्रेडिशन. ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी वेंचुअलीज प्रोवाइडेड है ऑलरेडी. फोर्थ इज it should be fifth, right? References to economic development of the society, occupation of people have also been given by genealogy writers residing at one's person place at a definite time. Genealogy writer used to write his account, therefore his account seem much closer to facts. समझ में आ रहा है वही चीज़ें कि मैंने जैसे बताया ना, उनके ऑक्यूपेशन, उनकी कास्ट, उनकी क्लास, सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि एक पर्सन के घर पे बैठ के उसकी जब इंफॉर्मेशन पूरी लिखी जाती है तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा रिलायबल अकाउंट होता है. Genealogies are the most trusted source to know person's traditions, culture, domicile, extension, lineage, कुला, धर्मा, कुलाचार, गोत्र. ठीक है, किसी भी पर्सन के ट्रेडिशन जानने के लिए, कल्चर जानने के लिए, उनका डोमिसाइल कि वो कहाँ से हैं, उनका डोमिसाइल क्या था और वो कहाँ तक उनका एक्सटेंशन गया है, कि कहाँ वो शिफ्ट हो चुके हैं, उनका पूरा फैमिली लीनिएज होता है ट्री. ठीक है, उनका पूरा कुल बोलते हैं ना, कुल, उनके धर्म, उनके गोत्र पे तो हमारे बहुत पॉलिटिक्स रहती है, राइट? तो पता होना चाहिए ये सब क्या होता है, गोत्र, कास्ट, या आपके मदर फादर को सब कुछ पता है. ठीक है, कि कुल क्या होता है, धर्म क्या होता है, गोत्र क्या होता है. पूछना कि मैम बोल रही थी
कि अपने पेरेंट्स से पूछो कि गोत्र क्या होता है, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड इट. Sixth is very important point from societal point of view, from the peace and harmony maintenance point of view. जो हमारे अंदर हॉस्टिलिटी हो गई कि बहुत लोग कन्वर्ट हो गए एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में. मान लो बहुत सारे हिंदूज कन्वर्ट हो गए इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में किसी टाइम में, या फोर्सफुली या विलिंगली, जो भी है. तो आज अगर हम इनकी वंशावलीज पढ़े तो हमारे ये जो हॉस्टिलिटीज़ एक दूसरे में ये कम हो सकती है. ऐसे ही जो रिलीजियस फैनाटिज्म है, सेपरेटिज्म है हमारे अंदर, एक दूसरे के लिए हीन भावना है ना, विभिन्नता है, वो कम हो सकती है. अगर हम जाने, अगर हम किसी का लीनिएज पढ़े, किसी की हिस्ट्री पढ़े और हमें पता चले कि हमारे रूट्स तो सेम है, हम एक ही जगह से आए हैं, या हमारी हिस्ट्री तो सेम है, हमारा कल्चर तो सेम है, हमारी ट्रेडिशन तो सेम है, और क्या पता हमारा रिलीजन भी एक टाइम पे सेम होगा. तो ये सारी चीज़ें, ये जो फीलिंग्स है ऑर्थोडॉक्स, रिलीजियस, कम्युनल राइट्स, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कम कर सकती है. एंड हार्मनी कैन बी एनकरेज थ्रू दीज वंशावलीज. 5 फीचर्स, सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन पुराणास. जो हमने 5 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, जीनियोलॉजी, है ना, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लेजेंड्स, ऐसे करके 5 सब्जेक्ट्स थे. ठीक है, उनमें भी वंशावलीज के बारे में लिखा गया है. जीनियोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ध्यान है, उस जीनियोलॉजी का एक सेक्शन आया था तो उसमें वंशावलीज आते हैं. दिस राइटिंग इज लिस्टेड एज प्रोमिनेंट फीचर अमंग द 5 फीचर्स विच आर गिवन इन पुराना, एज आई टोल्ड यू. ठीक है, नाउ अ संस्कृत श्लोक इज गिवन. लेट्स रिसाइट. सर्गाश प्रतिसर्गाश वंशु मानवंतरानी चे वंशानुचरितम चे पुराणम पंच लक्षणम. मीन्स क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, या यूनिवर्स का बनना. अराइवल ऑफ एपोकैलिप्स मीन्स प्रलय का आना. राइटिंग ऑफ वंशावलीज, और टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना. और लास्ट में वंश चरित्र पर डिस्कशन करना. ये सब हमें करना चाहिए, ये सब हमें पुराणास में लिखा हुआ है. दैट दीज फीचर्स आर द मोस्ट basic reality of the world and they provide valuable information and facts of history. ठीक है, so it is clear that we get valuable facts of history through Vanshavalis. Even at present, Vanshavalis writer go home to home and recite them. कि आज भी वंशावलीज राइटर एक घर से दूसरे घर जाते हैं, लोगों की लीनियज लिखते हैं, वंशावलीज बनाते हैं, उसको रिसाइट करते हैं. So with this we are done with all the literary sources. So please keep revising. We will do archaeological sources in the next class. So till then, be happy, be safe. Namaste.